Now today I am going to deliver you a lecture on a topic that is the male reproductive system. ओके आज हम लोग जो बचे हुए चीज़ें हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में उसके बारे में जानते हैं. ओके हमने टेस्टिस के बारे में पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि छूट गया है. ठीक है, मैं उसको अभी बता देती हूँ और वो बिल्कुल आपके नीट एग्जाम में आता है और मैं उतना ही बता रही हूँ आपको जितना कि आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए और बोर्ड के लिए. ओके नाउ लेट्स सी द व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच आर लेफ्ट, दैट इज muscles. Okay, now here which muscles help in the positioning of the testes? Now let's see here the cremaster and Detos muscles. Okay, Detos muscles. Okay, it help in the positioning of the testes. Positioning of testes. यानी कि जो टेस्टिस का पोजीशन है वो जो डिटरमाइन करता है दिस डिटरमाइनिंग बाय दिस मसल्स. कौन से मसल्स? क्रीमास्टर मसल्स एंड डेटर्स मसल्स. देखिए बच्चे, आप लोग को ये चीज़ बहुत याद रखना है आप लोग को कि कौन से मसल्स हैं जो कि पोजिशनिंग ऑफ टेस्टिस में आप जो है वो हेल्प करता है. कौन से मसल्स हैं? क्रीमास्टर एंड डेटर्स मसल्स. ओके नाउ लेट्स सी द हमने जो डायग्राम बनाया हुआ था पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो वो जो भी चीज़ें हमने रिप्रेजेंट किया था ना वो एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे. तो हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया है. ओके अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पेनिस के बारे में पढ़ते हैं. तो चलिए देखते हैं. ठीक है, पेनिस के बारे में पढ़ेंगे. तो जैसा कि हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्ट्रक्चर आप लोग को शो करके दिखाया ही था ऑलरेडी कैसा होता है स्ट्रक्चर पेनिस का. तो नाउ हियर सी द व्हाट इज द फर्स्टली वी नाउ द व्हाट इज द पेनिस क्या होता है. तो इट इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन. पेनिस क्या है? कॉपुलेटरी ऑर्गन है. कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है एंड इरेक्टेड स्ट्रक्चर का होता है. सिलेंड्रिकल एंड इरेक्टेड, cylindrical and erected structure का होता है. Okay, now there in the erected penis average length is about 15 centimeter. Okay, average length जो होता है वो कितना होता है? 15 सेंटीमीटर होता है erected penis का. Okay, now let's see the structure of the penis with the hip with the TS. Okay, transverse section. Okay, now their structure are already seen in the male reproductive system. Now let's see the transverse section. Okay, now let's see the diagram of the penis. Okay, now here see the structures. Okay, these are the TS of the penis. Now here these are the corpora cavernosa. Okay, these are the corpora cavernosa while these are the corpora spongiosa. Okay, penis having a 3 chamber. Okay, penis having 3 chamber in which 2 chamber are called corpora cavernosa and the 1 chamber is called corpora spongiosa. Okay, here represented these are the corpora cavernosa, corpora cavernosa, and here it is the corpora spongiosa. Or it's called spongiosa. And here in the place of cavernosa we can also say, write or say cavernosum. Okay, now here this penis TS of penis contains 3 chambers in which 2 are the corpora cavernosa and 1 are the corpora spongiosa. Okay, in the corpora cavernosa deep artery is present. Here I represented from the another markers color. Okay, here it is the deep arteries. Okay, what is this? These are the deep arteries. Deep arteries. Okay, फंक्शन भी हम लोग देखेंगे अभी डीप आर्टरीज के क्या फंक्शंस होते हैं. Okay, now in the corpora spongia, the deep artery is only present in the corpora cavernosa. It is not present in the corpora spongiosa. Okay,
डीप आर्टरी है ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होंगे, कॉर्पोरा कैवर्नोसा में प्रेजेंट होंगे, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा में यहाँ पे यूरेथ्रा प्रेजेंट होगा। दीज आर द यूरेथ्रा, these are the urethra. Okay, now inside the corpora cavernosa and corpora spongiosa, it is filled with erectile tissue. Okay, erectile tissue. These are the erectile tissue. These are the erectile tissue. Okay, erectile. These are the figure, the TS of the penis. Okay. Now the structure of the TS of the penis. And here in the corpora cavernosa, septum is also present. It separates these both chambers, which is called a penile septum. Okay. Now here like these structures. These are the penile septum. These are the penile septum. Okay. Now it is very clear diagram. Here three chambers are present. That is the corpora cavernosa. Two are the corpora cavernosa and one are the corpora spongiosa. Okay. Now in the corpora cavernosa deep artery is present, while in the corpora spongiosa deep artery is not present. And erectile tissue is present in both all of these three chambers, which help in the erection of the penis. Okay. Now let's see during when sex is desired, during at this time, blood through these deep arteries come into the erectile tissue, and then the penis become hard and erect. Okay. Now क्या होता है कि during sex desire deep artery के थ्रू जो blood है वो erectile tissue, जिसके कारण क्या होता है कि penis erect हो जाता है. Okay. Now let's see the another things is during erection time. Okay, the positioning of these corpora cavernosa and corpora spongiosa is very important. Okay, ये भी आते हैं. तो during erection, the position of the corpora cavernosa is at superior. Okay, superior posterior. Okay, their position is during erection time superior posterior. Okay, while the corpora spongiosa position is the inferior. Okay, inferior. They are represented by inferior. These are the position of the corpora cavernosa and corpora spongiosa during the erectile. Okay, these are the tears of the penis. Okay, now let's see the corpora spongiosa become enlarged. Okay, and it formed a conical like a structure which is called glans penis. जो ये corpora spongiosa है ये enlarge हो जाएंगे और enlarge हो करके conical like structures बनाते हैं जिसको कि glans penis कहते हैं. और जो ये glans penis है इसके ऊपर में this glans penis are shiny, smooth, hairless like a structure is present which is called a foreskin or pupius. Okay, इसके जो ये है इसके ऊपर में ग्लैंस पेनिस के ऊपर में एक शाइनी स्मूथी सा स्किन होता है जिसको कि प्रीप्यूस कहते हैं या फोरस्किन भी कहते हैं, जो हमने स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट भी किया हुआ था. ठीक है, ये जो प्रीप्यूस होता है इसके ऊपर में प्रेजेंट होता है जहाँ पे हेयर ही नहीं होता, यहाँ पे हेयर प्रेजेंट नहीं होता है. नाउ लेट्स सी अनदर थिंग कि द नेक रीजन ऑफ द पेनिस हैविंग टाइलोन और प्रीपिशियल ग्लैंड इज प्रेजेंट. ओके, जो नेक रीजन ऑफ पेनिस है वहाँ पे प्रीपिशियल ग्लैंड या टाइलोन ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है. दिस ग्लैंड्स
secrete the sebaceous substance which is called the smegma. Okay, it is very important, that is the smegma word. Okay, now here the smegma. Okay, what is the smegma? तो ये जो स्मिग्मा है जो सिक्रीट होता है फ्रॉम थाइलोन ग्लैंड, थाइलोन और प्रीपेशियल ग्लैंड, एक सीबेशियस सब्सटेंस सिक्रीट होता है व्हिच इज कॉल्ड स्मिग्मा, एंड थाइलोन एंड प्रीपेशियल ग्लैंड इज प्रेजेंट वेयर एट द नेक ऑफ द पेनिस, नेक ऑफ द, वेरी क्लियर, बहुत ही मैं शॉर्ट में बता रही हूँ. ओके, बहुत ही इजी है, आप लोग को आई थिंक कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा होगा. ठीक है, बहुत ही इजी है, तो घबराने की बात नहीं है, आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं. तो इससे जो क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसा कि मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसी तरह से क्वेश्चंस भी होंगे और इसके ऑप्शंस भी इसी तरीके से होंगे, कोई बाहर से कुछ भी नहीं आता है. ये बस कैसे क्या है ना, सबसे पहले आप लोग माइंडेड ये कर लीजिए कि जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में वो बाहर से कहीं से नहीं आते हैं, इट ऑलरेडी बेस्ड ऑन, कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. ओके, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाते हैं जो कि मैं आप लोग को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ही देती हूँ, या जो भी कहीं पढ़ रहे हैं वहाँ पे रिप्रेजेंट कर ही दिया जाता है. ओके, नाउ लेट्स सी, ये हो गए कि जो नेक रीजन पे पेनिस प्रेजेंट होता है वहाँ पे थाइलोन और प्रीपेशियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक सेबेशियस सिक्रेशन सिक्रीट करता है. इसी सेबेशियस सिक्रेशन को क्या कहते हैं, स्मिग्मा कहते हैं. ओके, इन्फ्लेमेशन अकर्स इन द स्पिग्मा, जैसे कि मुस्लिम करिकुलम में ऐसा होता है कि जो नेक रीजन ऑफ पेनिस से कट कर दिया जाता है तो ये ग्लैंड्स जो होता है ये अपसेंट हो जाता है, दैट्स वाई वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है. सो वी कैन कॉल जो इन्फ्लामेशन हुआ है वो स्पिग्मा में इन्फ्लामेशन हुआ है. ठीक है, ओके, तो स्पिग्मा में इन्फ्लामेशन जो होता है, ओके, वो कब होता है, ये भी ऑप्शन में दिया है, मुस्लिम करिकुलम ये करके ऑप्शन में दिया होता है. ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई पेनिस के बारे में. ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि हम लोगों ने जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो भी चीज़ें थी वो हमने पढ़ लिया है. अब हम आते हैं कि इसके जो ग्लैंड्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो हम लोग ग्लैंड के पोजीशन भी देखेंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे चलते हैं. डायग्राम बनाते हैं जिसमें कि रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन से ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं. ओके, these are the prostate gland. These are the prostate gland. Okay, these are the urinary bladder. From here seminal vesicle is connected. Seminal vesicle is connected. These are the seminal vesicle. Okay, I color this prostate gland. These are the prostate gland. Okay, very clear. And these are the urinary bladder. It's a ureter. Okay, now here like this. Same as here.
testes are present inside the testis sac, which is called as scrotum. And now let's see here. It is the urethra. Okay. Here it is a vulvar urethral gland is present. Now it is represented from the another color pane. Here it is the vulvar urethral gland. Okay, these are the urethra. Okay, here these are the glans penis, and these are the outer loose folded area of the glans penis is called the foreskin or prepuce. Foreskin or prepuce. Okay. Now let's see here. 3 glands are associated in the male reproductive system, which are that one is the seminal vesicle, which is pair in number. Another is the prostate gland, and another is the vulvar urethral gland. Okay. Now, firstly, we study one by one each glands. That is, firstly we study about the seminal vesicle. Okay. Only we are going to discuss about the seminal vesicle. Let's see about the seminal vesicle. Seminal vesicle. Okay, it is a one pair structure, one pair tubular structure. Okay, tubular structure कैसा है ये? एक पेयर है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूब लाइक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द ब्लैडर. ओके, ये बिहाइंड द ब्लैडर प्रेजेंट होगा. Behind the bladder present. Clear है? Now here another things is it secrete alkaline. It secrete alkaline. That's why in the semen mostly alkalinity is due to the secretion of the seminal vesicle. Okay? तो जो ये सेमिनल वेसिकल है, यहाँ से ये अल्कलाइन सिक्रीट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो सीमेन का ज़्यादातर जो पार्ट अल्कलाइन जो होता है, ये किसके कारण होता है? तो सेमिनल वेसिकल के कारण होता है. एंड दिस सेमिनल फ्लूइड्स कंटेन्स द फॉलोइंग थिंग्स. नाउ लेट्स सी. सेमिनल फ्लूइड कंटेन्स FCIP. ठीक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है. मैं बहुत ही जो भी लेंथी चीजें होंगी ना, मैं उसको ट्रिक के माध्यम से आप लोग को कोशिश करूंगी समझाने की. तो बिल्कुल शॉर्ट चीज में समझाऊंगी आपको, जो कि आपको याद भी हो जाए खेल खेल में. तो FCIP, व्हाट इज द FCIP? नाउ लेट्स सी. A for fructose, fructose. C for citric acid. I for inositol, and P for prostaglandins. Okay, this seminal fluid contains this substance: fructose, citric acid, inositol, prostaglandins. Okay, FCIP बहुत सारा कॉमन है. बिल्कुल आसान सा है. आप FCIP याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा. A for fructose, C for citric acid, I for inositol, and P for
प्रोस्टेग्लैंडिन्स। अब लेट्स सी देयर फंक्शन क्या है इसका यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे फंक्शन फ्रक्टोज का सबसे पहले हम लोग फंक्शन जानते हैं कि क्या फंक्शन है फ्रक्टोज का। ठीक है तो जो फ्रक्टोज है ना वो स्पर्म के मोटेलिटी में हेल्प करता है। क्या करता है? इट हेल्प इन मोटेलिटी ऑफ स्पर्म, हेल्प इन मोटेलिटी ऑफ स्पर्म। ओके फ्रक्टोज जो है वो स्पर्म के मोर्टेलिटी में हेल्प करता है एंड इट आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म। ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो इसका अनदर फंक्शन क्या हो गया? प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म। ओके नाउ the two function here, help in motility of sperm and provide energy to sperm. Very clear here? Now the another things, the function of the prostaglandins। जो चीजें आपको पूछी जाती है ना मैं वही बताऊंगी, उससे आगे कुछ भी नहीं बताऊंगी। ठीक है तो ये है प्रोस्टेग्लैंडिन्स। ओके प्रोस्टेग्लैंडिन्स के फंक्शंस क्या होते हैं? इट हेल्प इन मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इन और मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ओके नाउ जो फंक्शन होता है इसका, ओके ये मैं यहाँ पे मिटा दूँ ताकि आप लोग देखने में दिक्कत ना हो। प्रोस्टेग्लैंडिन्स, ओके जो प्रोस्टेग्लैंडिन्स है देयर फंक्शन क्या है कि मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है प्रोस्टेग्लैंडिन्स का फंक्शन क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ओके वेरी क्लियर। तो ये हमने सबसे पहला जो ग्लैंड्स है विच आर एक्सेसरी ग्लैंड्स इन दी होल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वन इज द सेमिनल वेसिकल, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड में पढ़ा कि क्या होता है, कितने पेयर के होते हैं, ये क्या क्या कंटेन करता है सेमिनल वेसिकल का, नेचर क्या होता है, अल्कलाइन नेचर होता है। वेरी क्लियर है। तो जो भी चीजें आपको पूछी जाएंगी ना बस इससे ही पूछी जाएंगी, इससे आगे एक्स्ट्रा दिमाग से निकाल दीजिए कि पूछी जाए। ठीक है तो अब हम अनदर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो बचे हुए ग्लैंड्स हैं उसके बारे में। ठीक है तो आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग ग्लैंड्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द bulbourethral glands and the prostate glands. Okay and bulbourethral gland is also called a copper gland.